Welcome you all. I'm Mohammed Tufail, Assistant Professor, University of Senegal Campus, Badin. I'm talking to you from the platform of the Paragon Academy, Badin, and I welcome you all in this free online English language teaching course. Today we are in our 12th session, and hitherto we have discussed various aspects of language learning. In my initial courses, I mentioned that this class is designed for basic learners, especially those students who are at home because of various schools and colleges they are shut, and also this would help some university students and other professionals towards their language acquisition skills. So if I would recap my previous sessions with this and we could move forward. In our previous class we talked about what language is and what is its function. You know that languages, all the languages, they are used for communication. Basically we intend to communicate with the people, so they are source of communication. And then we talked that skills, they are equally important. We need 4 skills: listening, speaking, reading, writing. And the most important thing what we discussed was the difference between L1 and L2. When we talk about L1, we mean that our mother tongue. And in case of mother tongue, we only need to focus on 2 skills in schools. And schools also teach you 2 skills, that are reading and writing, because listening and speaking, these 2 skills are already covered at your home, with your parents, with your community. And when you went to school, you were able to listen Sindhi and speak Sindhi. You were able to listen Urdu and speak Urdu. But when you came to school, you were not in a condition to read Urdu and write Urdu, or read Sindhi or write Sindhi. Then, the prime focus of school was to produce 2 skills. That was the reading and the writing. And they did it. The method, the technique they used to inculcate, develop and cultivate these 2 skills of reading and writing, that was, they took you to alphabet, then words, then lessons, then questions and answers, dictations. That was the pattern to make you able to read and write a particular language. It worked well, it was good, very nice. But when we came to teach English, then we couldn't focus on these 4 skills. We used the same pedagogical approaches, same technique what we used for teaching L1. Because in L1 we needed only 2 skills to develop or cultivate in the learners, but whereas in L2 in English we needed to cultivate 4 skills. So in how can we cultivate these 4 skills? For that it was necessary to focus on reading and writing as well, listening and speaking as well. But unfortunately our teaching system, they ignored these 2 skills. The result is that our students and we people, we are stuck when we come to communicate these things. Even at a communication level, we have a problem on the one hand, and when there comes matter to write, express, again we have this. And same is when we come to the area of listening, especially when we are going to listen somebody means the native speaker. That is a big problem. When the native people they speak, we don't understand, or we miss the context, or we miss the content. As a result, our communication remains incomplete, and there comes gap again. So, keeping these all things in view in this course, what we decided that in language we go with the 4 skills, but we decided that we will take these 3 essentials in this course. And in that 3 essentials, जब हम अंग्रेजी सीखेंगे तो हमने ये तय किया था कि हम 3 चीज़ों को साथ लेकर चलेंगे. That was semantics and phonetics and syntax. Semantics से हमारी मुराद थी कि we need a set of vocabulary. हमने vocabulary develop करनी है. And how can we develop this vocabulary?
So we will not remember the words and meaning from the dictionary, etc. But by using different material, for watching videos and reading material by these method, we would develop our semantics. Number one. Number two, we would focus on phonetics as well, because pronunciation is equally important. The way you pronounce your words are very important. The question is that generally whatever L1 you have, जो भी आपकी मदर टंग है, ज़ाहिर बात है जब आप L2 में बात करेंगे तो वो उसी पे असरअंदाज होगी। ये नहीं कि जब हम अंग्रेज़ी बोलते हैं तो उसमें सिंधी का एक्सेंट होता है या पंजाबी का एक्सेंट होता है या पश्तो का एक्सेंट होता है, लेकिन यही चीज़ आपने देखा जब एक अंग्रेज़ उर्दू बोलता है या सिंधी बोलने की कोशिश करता है तो उसका भी एक्सेंट जो है ना वो सिंधी को अंग्रेज़ी में बोलने की कोशिश कर रहा होता है। तो दैट्स नेचुरल, इट्स नॉट समथिंग जस्ट ओनली पर्टिकुलर विद वी पीपल, नो, दैट्स क्वाइट नेचुरल। और ये फितरतन है कि आपकी अपनी L1 दूसरी की लैंग्वेज पे असरअंदाज होगी। सो व्हाट वी हैव टू डू अब ये है कि पर्टिकुलर जो हम यहाँ पे हैं, वी हैव really a good deal of sounds which are in Sindhi, especially in Urdu. We have these sounds. Actually, we can control these sounds and we could pronounce these sounds effectively. Certain P, K, T, Ch. What the basic sounds we can change. We say teacher. We say people. P. We say put. P-U-T, put, rather than put. So basic sound, certain sound, by changing these sounds effectively, we can pronounce words properly. And when we pronounce words properly, then that develops wonderful layer in your language. As a result, your communication becomes effective on the one hand, and your audience, they become really interested in your job, in your ideas. So phonetics, we also took it important that pronunciation is important, semantics, phonetics, and then comes syntax. And when we talk about syntax, we say that what is a syntax? Basically what we call grammar or grammatical compositions, order of a sentence, the way we combine words in order to make a certain sensible communication, that is called we call it syntax. Okay, now you think that the three things, they are equally important. We are moving from that semantics and then phonetics and syntax, and we will take these all things together and as a result we would be able to learn language effectively. Now in our previous class we covered these areas, basics of that language teaching method, etc. So today in a toilet sense we are going to talk about the syntax. From syntax point of view, today we would talk about pronoun, and then we move forward and we will try to connect these things. And so in each class we are connecting, or we are just taking one component from these word classes and we are moving forward. Okay, so let us move forward to connect this class with the previous topic. So this had been our prime journey. Okay, we started language as a source of communication. Okay, and we talked about we have four skills: may it be reading, writing, listening, speaking. And then we discussed that L1, L2, the difference between L1 and L2, and how these essences of language, that is the semantics, means we need a vocabulary. Then the phonetics, we said that way we pronounce like A, O, P, K, T, Ch, R. So these are the way we pronounce words, and then we say that what are the essentials, and the third was the syntax and grammar. Okay, so we have already covered in पिछले जो 12 सेशंस हमारे 11 हो चुके हैं, उसमें हम इन चीज़ों पे डिस्कस कर गए कि हाउ दीज वोकल ऑर्गन्स साउंड्स आर प्रोड्यूस, लैंग्वेजेस की शुरुआत कैसे हुई, लैंग्वेजेस किस तरीके से कॉन्सोनेंट वॉयल्स को प्रोड्यूस करती है। अब यहाँ जब हम पहुँचे थे, देन वी टॉक्ड अबाउट दैट दिस इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर्स ऑफ लैंग्वेज के लेटर्स दे प्रोड्यूस सिलेबल और फनीम, एंड फनीम प्रोड्यूस वर्ड्स जो होते हैं
उनकी पास अपनी एक मीनिंग होती है और फिर वर्ड्स मिलकर फ्रेजेस या क्लासेस बनाते हैं और ये मिलकर फिर एक सेंटेंस बनाते हैं। सेंटेंस के पास एक थॉट होता है, एक उसके अंदर सेंस मौजूद होता है एक सेंटेंस के अंदर। फिर पैराग्राफ जो है ना एक आइडिया देता है हमें, जो किसी भी एक चीज़ के बारे में आइडिया होता है और एक पैराग्राफ के बाद एक आइडिया होता है। देन वी फाइनली केम टू एसे। तो अब देखें यहाँ से ये जो पॉइंट है फ्रॉम वर्ड से हम शिफ्ट हुए थे, वी वेंट टू द वर्ड क्लासेस। ओके, तो हमने कहा था कि फिर हमने वर्ड्स को क्लासीफाई किया था दैट these words are going to talk about a particular class. Okay, यहाँ पे एक चीज़ हमने important discuss की थी कि that we will not just remember the definitions of these things as we do in our functional, in our traditional grammars, but when we are going to deal with English language, we will simply talk about these functions, what are their function in the language and what function they do and what role they play in the language, because we call that language basically is a system, and in this system these all words are going to play a specific role. So what is their class? Okay, what the role that particular class plays? So noun को हमने पढ़ा था कि noun चीज़ों पे नाम रखता है ताकि noun को हम जो ना चीज़ों की पहचान कर सकें। प्रोनाउन के बारे में हमने ये कंसेप्ट डेवलप किया था कि ये नाउन को का मुतबादिल बनकर आता है, दैट्स नाउन सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट का मतलब है मुतबादिल, और लैंग्वेज में वैरायटी पैदा करता है। वैरायटी का मतलब ये है कि जो नाउन मनाचनी पैदा करता है उसको ये ख़त्म करता है। नाउन बार बार रिपीट होता है तो ये उसको ख़त्म करता है। एडजेक्टिव नाउन प्रोनाउन के बारे में बताता है कि नाउन प्रोनाउन है कैसा। जो भी नाउन है उन या प्रोनाउन है, प्रोनाउन कुछ नहीं है, आर्जी तौर पे एक चादर है। जब भी आप इसी प्रोनाउन को हटाओगे तो उसके पीछे कोई नाउन बैठा होगा। शी की अगर चादर आप हटाओगे तो उसके पीछे कोई फीमेल जो है ना नाउन मिलेगा। ही की अगर आप जो है ना वो ओढ़नी हटाओगे तो सी के नीचे आपको कोई मेल नाम मिलेगा। इसी तरीके से ये जितने भी नाउन हैं ये आर्जी तौर पे अपने ऊपर एक जो है ना वो लिबादा ले लेते हैं ताकि वो बार बार रिपीट ना हो, जिससे लैंग्वेज की खूबसूरती ख़राब होती है। सो वी गो विद द प्रोनाउन। एडजेक्टिव इनके बारे में बताता है, क्योंकि नाउन प्रोनाउन अपने बारे में कोई नहीं बता सकते, वो अपने बारे में कोई मालूमात नहीं देते। तो फिर एडजेक्टिव आकर बताता है कि अगर रूम एक नाउन है तो रूम कैसा है, बिग रूम है, स्मॉल रूम है, फर्निश्ड है, क्लीन रूम है, अनटाइडी है। अब उसके बारे में आप एडजेक्टिव लगाते जाओ। टीचर एक नाउन है, अब उसके साथ जितने मर्जी एडजेक्टिव लगाते जाओ। टीचर है, टैलेंटेड टीचर है, रेगुलर टीचर है, पंक्चुअल टीचर है, एक्सपीरियंस टीचर है, कोऑपरेटिव टीचर है, और काइंड टीचर है, पोलाइट टीचर है। तो आप उसके साथ जितने भी एडजेक्टिव लगाए वो उसके बारे में, टीचर के बारे में मालूमात देगा। वर्ब हमें बताता है कि वो काम क्या करता है, और एडवर्ब बताता है कि वो काम कैसे हो रहा है। अब काम तो हो रहा है लेकिन कैसे हो रहा है। दे आर प्लेइंग क्रिकेट, ओके, यू से दे प्ले तो वर्ब है लेकिन कैसे हो रहा है। दे आर प्लेइंग फास्ट, तो फास्ट बता रहा है कि वो काम कैसे हो रहा है। या जिनसे शी वेट्स फॉर मी, शी इज़ वेटिंग आउटसाइड। अब वो इंतज़ार तो कर रही है लेकिन कहाँ पे कर रही है, तो आउटसाइड यहाँ पे जो है एडवर्ब है जो बता रहा है कि उसकी जो है वो जगह क्या है। तो एडवर्ब फिर जो है ना वो बताता है कि वो चीज़ें एडवर्ब में हम फिर डिस्कस करते हैं कि एडवर्ब उसका टाइम क्या है, उसका प्लेस क्या है, उसके मैनर क्या हैं। तो ये दीज थिंग्स विल बी कवर्ड इन एडवर्ब। ओके, फिर हमने प्रेपोजिशन को डिस्कस किया था। प्रेपोजिशन में हमने कहा था कि प्रेपोजिशन का बेसिक रोल ये होता है कि वो आपको, उसमें दो चीज़ों को हमने डिस्कस किया था कि व्हाट आर लॉजिकल प्रेपोजिशन, व्हाट आर डेफिनेट प्रेपोजिशंस। लॉजिकल प्रेपोजिशंस वो होते हैं जो किसी सर्टेन लॉजिक के तहत हम लगाते हैं, और जो फिक्स एंड डेफिनेट प्रेपोजिशंस वी जस्ट यूज विद एक मखसूस नाउन के बाद, मखसूस वर्ब के बाद, या मखसूस जो है ना वो एडजेक्टिव के बाद वर्ड आते हैं। दे आर कॉल्ड फिक्स एंड डेफिनेट प्रेपोजिशन। जिस तरीके से हम कहते हैं ही इज़ एडिक्टेड टू वाइन, आई एम अफ्रेड ऑफ डॉग्स। अफ्रेड के साथ आव क्यों लगता है, या एडिक्टेड के साथ च क्यों लगता है, या लिसन वर्ब के साथ च क्यों लगता है, नॉक वर्ब के साथ एट लगता है ऑलवेज। दीज आर फिक्स्ड एंड डेफिनेट प्रेपोजिशंस। तो हमने ये फिर प्रेपोजिशंस के चैप्टर में डिस्कस करेंगे। देन कंजक्शन का बेसिक काम होता है टू जंक्शन पैदा करना, जोड़ना या लिंक पैदा करना। इंटरजेक्शन आपकी सडन फीलिंग्स का इजहार करता है, और आर्टिकल्स जब नाउन हो, कॉमन हो, काउंटेबल हो, सिंगुलर हो, तो उसी को मखसूस करना हो तो हम द लगाते हैं, और जब उसको आम करना हो तो हम डेफिनेट आर्टिकल या इन लगाते हैं। दैट इज़ वेयर we talked about in our previous classes, and they helped us to understand what is logical development of this classes. Okay, अब देखें, जब भी आप अब पिछली क्लास में हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि जब भी whenever you are going to deal with a noun, okay,
तो नाउन को जब भी पढ़ें तो आप इस चीज़ का ख्याल करें कि व्हाट इज़ दैट, यू आर टॉकिंग अबाउट प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन जो होते हैं या प्रॉपर होते हैं या कॉमन होते हैं। अगर कॉमन होते हैं या अनकाउंटेबल होते हैं या काउंटेबल होते हैं, और जो काउंटेबल होते हैं वो या सिंगुलर होते हैं या प्लूरल होते हैं। और उसके अलावा नाउन में आपको जेंडर पढ़ना चाहिए। मकसद ये चीज़ें हैं जो आप जब भी नाउन आपके सामने आए तो आप उसको क्लियर करके छोड़ें। जो पिछली हमारी क्लास थी 11वीं, पूरी क्लास हमने नाउन को फोकस किया था, जिस तरह आज की क्लास में हम नाउन को फोकस करने वाले हैं। लेकिन नाउन में इन चीज़ों का आपको ख्याल करना है कि वैसे प्रॉपर और कॉमन, प्रॉपर वो होता है जिसकी दूसरी चीज़ ना हो, कॉमन वो होता है जो उस जैसी दूसरी चीज़ें मौजूद होती हैं, वी कॉल देम कॉमन। फिर जो कॉमन नाउन है, मिसाल के तौर पे अभी बदीन है, ये प्रॉपर नाउन है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि बुक है, कॉपी है, चेयर है, तो ये कॉमन नाउन है, ये हर जगह पर मौजूद है। अब वो जो कॉमन नाउन होते हैं वो अगर गिनती हो सकते हैं दे आर काउंटेबल, अगर गिनती नहीं हो सकते हैं दे आर अनकाउंटेबल। जिस तरह फूड अनकाउंटेबल है, पानी को हम गिनती नहीं कर सकते, वाटर विल बी अनकाउंटेबल, मिल्क विल बी अनकाउंटेबल। और स्टार जो है ना वो काउंटेबल हैं क्योंकि वी कैन काउंट देम, सो दे आर काउंटेबल। एंड देन यू कम टू दिस पर्टिकुलर जो काउंटेबल नाउन होते हैं वो फर्दर डिवाइड होते हैं इसमें, या वो सिंगुलर होते हैं या प्लूरल होते हैं। देखिए सिंगुलर प्लूरल का जो ताल्लुक है वो काउंटेबल डिवाइड के साथ होता है। तो जो बाकी जो हैं अपना नाउन होते हैं उनके 4 जेंडर्स होते हैं, या मस्कुलाइन या फेमिनाइन या कॉमन जेंडर या न्यूट्रल जेंडर। अब इसमें अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप जो 11वीं क्लास थी वो पूरी नाउन की थी, दैट विल गाइड यू इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट। तो एक बात जो मैं बताना चाह रहा था वो ये कि जब भी आप नाउन को पढ़ो तो इन चीज़ों को क्लियर करो, जब भी प्रोनाउन को पढ़ो तो उसके केसेस के बारे में क्लियर रहना कि व्हाट आर केसेस ऑफ प्रोनाउन के, और उसकी काइंड्स और केसेस को समझो। जब एडजेक्टिव पे आते हो ना तो उसकी काइंड्स और डिग्रीज को समझो, व्हाट आर द काइंड्स एंड डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। फिर जब आप वर्ब पे आते हो तो उसके वर्ब की काइंड्स और फॉर्म्स पे फोकस करें। जब एडवर्ब पे आते हो तो एडवर्ब की भी काइंड्स एंड डिग्रीज होती हैं। देखिए डिग्रीज सिर्फ एडजेक्टिव की नहीं होती हैं, डिग्रीज एडवर्ब की भी होती हैं। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि डिग्रीज सिर्फ एडजेक्टिव की नहीं होती, डिग्रीज एडवर्ब की भी होती हैं। और हम एडवर्ब की डिग्रीज को नहीं पढ़ते या इसको डिस्कस नहीं करते, ये भी इसी तरह काम करते हैं जिस तरीके से एडजेक्टिव की डिग्रीज काम करती हैं। तो वी विल आल्सो फोकस देम बोथ, ओके, डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स एंड डिग्रीज ऑफ एडवर्ब। फिर हम प्रेपोजिशंस पे जब आएंगे वी विल डिस्कस लॉजिकल प्रेपोजिशंस एंड वी विल डिस्कस फिक्स और डेफिनेट प्रेपोजिशंस। तो ये दो जो प्रेपोजिशंस के स्ट्रक्चर्स हैं इसको हम जो है ना वो माइन्यूटली डिस्कस करेंगे। और जब हम कंजक्शन को पढ़ेंगे देन वी विल बी फोकस ऑन कोऑर्डिनेट एंड सबऑर्डिनेट एंड कोऑर्डिनेट। यहाँ पे टाइपो की है, लेट मी मेक इट सबऑर्डिनेट इज नॉट ओके, सबऑर्डिनेट एंड कोऑर्डिनेट कंजक्शंस, ओके। सो वी विल टेक देम बोथ एज ए एंड देन वी विल टॉक अबाउट इंटरजेक्शन। और इंटरजेक्शन के बाद हम आर्टिकल्स में बात करेंगे। जब हम आर्टिकल्स में आएंगे तो वहाँ भी हम दो चीज़ों को बात करेंगे, इंडेफिनेट आर्टिकल जिसमें अ और एन आते हैं, और डेफिनेट आर्टिकल जिसमें द आते हैं। अब दिस विल बी आवर एरिया ऑफ सेंटेक्स व्हाट वी कवर प्रीवियस क्लास वी टॉक्ड अबाउट प्रोनाउन noun. In today's class we are going to talk about pronoun, okay, so please let's move forward to pronoun. Well, देखिए जब हम प्रोनाउन की बात करते हैं तो हमारा बुनियादी मकसद ये है प्रोनाउन नाउन की रिपीटेशन को कंट्रोल करता है ना, ये उसका रिप्रेजेंटेटिव है, इसका रिपीटेटिव है। वी डोंट नीड अ रिपीटेशन, सो वी टॉक अबाउट अ प्रोनाउन, ओके। ओके, स्क्रीन इज नॉट क्लियर, व्हाट वुड आई डू? क्या स्क्रीन का प्रॉब्लम किसी एक साथी के लिए आ रहा है या सब के लिए आ रहा है? प्लीज़ okay, thank you very much, let's further. So देखिए आप जहाँ भी हैं अगर वहाँ पे थोड़ा सर्विस का इशू होता होगा तो आपकी स्क्रीन जो है ना वो हो सकती है, तो इसलिए शायद सिग्नल अगर थोड़े कम होते होंगे तो शायद ये ब्लर होती होगी, दोबारा ये मेंटेन हो जाएगी। ये सब नोट्स गूगल बुक पे मौजूद हैं, जो गूगल क्लासरूम है वहाँ पे तमाम मौजूद हैं, तो आप अगर वहाँ से डाउनलोड करके रखेंगे तो आपके लिए और ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगी व्हेन वी आर स्टडीइंग।
So well. So when we talk about this pronoun, we use it instead of a noun. We don't want to repeat a noun time and again. Therefore, we use this pronoun. तो pronoun के अंदर फिर हम जब भी डिस्कस करते हैं, we talk about these cases, how they are used and what is their functions. Okay. Now look at that. पहले जो pronoun हम use करते हैं, अब इसकी अगर kinds पे बात करें तो we have a demonstrative pronoun. Okay. Demonstrative pronoun is that. Okay, it's not clear. Well, it will be, क्योंकि बार बार हम स्क्रॉल कर रहे हैं तो इसलिए इस होगा. So when we talk about a demonstrative pronoun, it is used to point out things, persons are already mentioned in the sentence. Okay, example this or that for singular, these and those for plural. Okay, demonstration का मतलब ये होता है कि जब आप किसी चीज़ को point out कर रहे होते हैं, that's what is demonstration. जब आप किसी चीज़ की निशानदेही कर रहे होते हैं, आप कहते हैं ये या वो. ओके, तो वी हैव दिस 4 way टू डेमोन्स्ट्रेट. ओके, आइदर दिस आर दैट, दीज आर दोज. अगर सिंगुलर है तो हम दिस या दैट चुनते हैं, और अगर प्लूरल है तो वी हम दीज या दोज लगाते हैं. उसमें एक चीज़ ये है कि जो नज़दीक होता है तो हम दिस लगाते हैं, अगर दूर है तो हम दैट लगाते हैं. दिस इज़ माई पेन, दैट इज़ योर पेन. और अगर प्लूरल होते हैं वी यूज़ दीज आर दोज. ओके, it is these are those. Okay, for plural, if they are near, close, then we use these are my books and those are your books. So these and those and this and that, okay, they are used for demonstration. We use it to demonstrate, and this is called demonstration pronoun. Okay, the second pronoun is indefinite pronoun. Okay, the job of indefinite pronoun is that it is very clear from its name. Look, its name is indefinite. When we call something indefinite, we mean that it is not a fixed, it's not a definite. वो कोई मकसद definite नहीं है, वो indefinite है. indefinite से जिसको हम क्या कि जिसका हम तयन न कर सकें. तो इसमें कुछ ऐसे जो है प्रोनाउन यूज़ होते हैं जो किसी मखसूस नाउन के लिए नहीं यूज़ होते. somebody, anyone, anything. अब देखिए somebody के अंदर अगर आप देखें तो somebody में पूरी दुनिया आ जाएगी. अगर कोई आपको कहे कि somebody is waiting for you, somebody is waiting for you, अब वो somebody कौन? दुनिया के जितने भी बंदे हैं वो सब उस somebody के नाम पे आ जाएंगे. कोई मैं आपको complete someone has come to meet you, कोई आपसे मिलने आया है. अब ये कोई कौन है? दुनिया में जितने भी रहने वाले बंदे हैं उनका ये रिप्रेजेंटेटिव है. तो दिस इनफिनाइट. ओके, इट्स इंडेफिनिट एंड वी कॉल देम इंडेफिनिट प्रोनाउन. और ये तब लगाते हैं जब नाउन डेफिनेट ना हो, फिक्स ना हो, तो हम यूज़ करते हैं कि एनीबडी इज कमिंग फॉर मी, or somebody is coming to meet you, nobody is waiting for you. So this will be called as indefinite pronoun. Okay. उसके बाद इंटेंसिव प्रोनाउन होते हैं. इंटेंसिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो बुनियादी तौर पे जो है ना वो शिद्दत पैदा करने के लिए हम यूज़ करते हैं या इंटेंसिटी पैदा करने के लिए यूज़ करते हैं. चूँकि ये जो सेंटेंस जो होते हैं ये रिफ्लेक्सिव और इंटेंसिव केस को हमें थोड़ा समझना होगा. जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है उसका काम यही होता है कि वो चीज़ सेंटेंस के अंदर रिफ्लेक्शन करा आता है ना. रिफ्लेक्सिव से मुराद ये कि काम करने वाला भी खुद हो और वो काम रिफ्लेक्ट भी उसकी तरफ करे ना. मिसाल के तौर पे मैं कहूँ कि आई टीच माई सेल्फ, तो अभी पढ़ा भी मैं रहा हूँ और पढ़ने वाला भी मैं हूँ. तो ये जो सेंटेंस जब ये केस आखिर में आएगा तो ये फिर रिफ्लेक्सिव केस बन जाएगा. Ghaffar, thank you very much, but I don't know what is the problem. Maybe it is a problem of a screen, that of service. So if it is clear, we could proceed further. Yeah, it is clear here.
It means that it is because of the service issues. It is clear with Mr. Zahid, so thank you. This may be service issues in different areas, because of that it's getting blurry. So we will talking about this intensive case. When we talk about this intensive case is that when the subject is going to intensify. जब आप किसी बात पे जोर भर रहे होते हैं या आप एक चीज़ पे जो है ना वो एम्फेसाइज करना चाहते हैं, यार मैंने खुद तो आपको वो चीज़ दी थी। अब ये जो खुद का सेंस है ना, और ये यहाँ पे हम खुद क्यों लगा रहे हैं, इसलिए लगा रहे हैं कि यहाँ पे आप जो बात करें उस बात पे आप जोर भरना चाह रहे हैं, और जब आप इस पे जोर भरना चाह रहे हैं, इस जोर भरने की जो सलाहियत है उसी को हम जो है ना वो कहते हैं इंटेंसिव केस। तो या जी मेरा भाई खुद तो आपको दे गया था, आप कैसे कहते हैं कि आपको पैसे नहीं दिए? माई ब्रदर हिमसेल्फ गेव यू मनी। या आप कहते हैं जी मुझे दावत नहीं मिली, तो वो कहता है कि यार आई माई सेल्फ गेव यू इन्विटेशन कार्ड, मैंने खुद तो आपको कार्ड दिया था। तो देखिए आई माई सेल्फ, यहाँ पे फ़ौरन सब्जेक्ट के बाद जो है ना हमें ये रिफ्लेक्सिव जो केस है, जो इसका है अपना केस, फ़ौरन जो है ना वहाँ पे रखना होता है। तो ये जो है ना वो इंटेंसिव केस कहलाता है कि आई माई सेल्फ गेव यू इन्विटेशन कार्ड, मेरे पापा खुद आपको दावत दे गए थे। माई फादर हिमसेल्फ गेव यू इन्विटेशन, माई मदर हर सेल्फ, my mother herself, my father himself, I myself। आप खुद ने मुझे जवाब दे दिया था। You yourself refused me to do that। तो ये you yourself, he himself, she herself, my father himself, I myself, ये रिफ्लेक्सिव जो है ना इंटेंसिव केस के एग्जाम्पल हैं। और ये हम तब लगाते हैं जब हमने कोई इस तरह की जिस पे जोर देना होता है, तो हम ये स्ट्रक्चर्स को यूज़ करते हैं। देन वी यूज़ इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का बुनियादी काम ये होता है कि ये सवाल पूछने के काम आता है। इसमें हम व्हाट इज़ योर नेम, विच इज़ योर बुक, हु डज टीच यू इंग्लिश, तो हु या विच एंड व्हाट, ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। फिर देखिए यही जो है ना वो आप इसको इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव भी बना सकते हो। अगर आप ये कहो कि व्हाट बुक डू यू वांट टू परचेज, अगर व्हाट के बाद बुक आ जाएगा तो फिर ये एडजेक्टिव बन जाएगा, व्हाट बुक डू यू वांट टू परचेज। लेकिन व्हाट इज़ योर नेम, यहाँ पे व्हाट जो है ना प्रोनाउन है। तो ये देखिएगा कि ये एडजेक्टिव भी बन जाते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है कि सेंटेंस में उनकी क्या सूरत हाल है, किस तरीके से वो यूज़ हो रहे हैं। तो अगर इन वर्ड्स के बाद इमीडिएटली नाउन आ जाए ना, जिस तरह व्हाट बुक, व्हाट के बाद नाउन आ रहा है ना, फिर ये वर्ड प्रोनाउन नहीं रहेगा, ये एडजेक्टिव हो जाएगा। ये एडजेक्टिव को फिर वो क्योंकि उसको नाउन को क्वालिफाई करने चला जाएगा, तो फिर ये प्रोनाउन नहीं रहेगा। तो दीज आर इंटरोगेटिव प्रोनाउन। ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन वो होते हैं जो सेंटेंस मकसद जो पार्ट करते हैं या डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ईच या एवरी इज़ लॉन्गिंग फॉर गैलरी, आइदर ही आर दे आर गोइंग टू कराची, तो नाइदर दे नार ही इज़ टेकिंग द टेस्ट। तो ये आइदर आर या नाइदर नॉर। अच्छा, इसको आप नाइदर नो पढ़ें या नीदर नो पढ़ें। अच्छा, नीदर अमेरिकन इसको नीदर भी प्रोनाउंस करते हैं और ईदर भी करते हैं, और ये इनके दोनों तलफ़्फ़ुज़ हैं, आइदर और ईदर, नाइदर और नीदर। चूँकि वी आर यूजिंग ब्रिटिश पैटर्न, सो वी आर प्रोनाउंसिंग इट आइदर एंड ओ, but if somebody produces it like either or neither, so we won't consider it wrong. Well, तो अच्छा, इसमें ईदर आर में या नीदर नार में एक चीज़ का ख्याल क्या करें, वो है वर्ब एग्रीमेंट का। देखिए इसमें दो सब्जेक्ट हैं, ईदर में एक ही सब्जेक्ट है और एक दे सब्जेक्ट है। इसमें जो वर्ब एग्री करेगा ना लास्ट सब्जेक्ट के साथ करेगा। यहाँ पे आ इसलिए मौजूद है कि ये दे है। अगर यहाँ पे सिंगुलर, देखें अभी मैंने नीचे के सेंटेंस में इसको उलट किया है। यहाँ पे मैंने कहा कि नाइदर दे नार ही इज़ टॉकिंग। देखिए यहाँ पे इज़ क्यों लगा है, ही है, अतः कि दे भी मौजूद है, लेकिन यहाँ पे दो सब्जेक्ट हैं, तो ये जो वर्ब एग्री करेगा वो लास्ट सब्जेक्ट के साथ करेगा। यहाँ पे हम जो है ना वो लास्ट जो भी आपका सब्जेक्ट हो, अगर ये प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब प्लूरल रखें, जिस तरीके से दे आर है। अगर ये सिंगुलर है तो आप हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर रखें, आगे वाला सब्जेक्ट भले प्लूरल हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसमें वर्ब एग्रीमेंट आपको दूसरे सब्जेक्ट के साथ करनी होती है। तो जिस तरीके से फिर आइदर का मतलब ये भी होता है कि आइदर फूड आर टी इज़ रेडी, आया देखो खाना तैयार है या चाय तैयार है। अच्छा, इन दोनों में से आप कह रहे हैं। अच्छा, फिर आप इन दोनों को अकेला भी रेफ़र कर सकते हैं ना कि देखो चाय या खाना कौन सी चीज़ तैयार है। अगर आप इन दोनों को इकट्ठा
इकट्ठा रेफर करना चाहते हो तो आप ये भी कह सकते हो कि आइदर इज रेडी। अब देखो आइदर इज रेडी एंड आइदर आर रेडी, यहाँ पे मैंने क्यों दो हेल्पिंग वर्ब लगाए? जब मैं कह रहा हूँ आइदर इज रेडी तो मेरा मतलब है कि दोनों तैयार हैं, इसका मतलब है चाय भी तैयार है, खाना भी तैयार है। तो इसको आप यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इज भी लगा सकते हो और आ भी लगा सकते हो, दोनों हेल्पिंग वर्ब आपके यहाँ पे एग्री कर सकते हैं। दैट्स राइट। ओके, यहाँ आप कह दें कि नाइदर इज रेडी या नाइदर आर रेडी, तो ये जो है ना, तो दीज आर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के जो हम इस टेंस में यूज़ करते हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउन ये होते हैं जो आपस में, देखिए रेसिप्रोकल का मतलब ही बाहमी होता है। हम कहते हैं ना इज्जत रेसिप्रोकल होती है। रेसिप्रोकल से मुराद है अगर भाई इज्जत दोगे तो इज्जत लोगे। अब ये जो रेसिप्रोसिटी होती है ये दो चीज़ों के दरमियान बाहम होती है। बाहम जो है उसमें उसका मतलब ये होता है कि उसमें दो ही चीज़ें होती हैं, या ईच एंड अदर होता है या वन एंड अदर होता है। दो जो है ये प्रोनाउन है जिनको हम यूज़ करते हैं, ईच अदर एंड वन एंड अदर। अच्छा, ईच अदर तब यूज़ होगा जब दो बंदे होंगे, वन एंड अदर तब होगा जब दो से ज़्यादा बंदे होंगे। डेविड एंड कैथरीन लव्ड ईच अदर। देखिए यहाँ पे डेविड और कैथरीन दो हैं तो हमने क्या लगाया, ईच अदर। ओके, दे लव्ड ईच अदर। ये हम तब लगाते हैं कि जब यहाँ पे दो होते हैं। लेकिन जब वी से दैट ऑल मुस्लिम्स आर ब्रदर्स टू वन एंड अदर, ये जो हम लगाते हैं कि टू वन एंड अदर, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हम सब की बात करें, दो से ज़्यादा की यूज़ करते हैं, तो वी यूज दिस टर्म वन एंड अदर। ईच एंड अदर ओनली रेफर्स टू टू एंड वन एंड अदर रेफर्स टू मोर देन टू। तो ये बेसिक रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। उसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो मैंने ऊपर आपको डिस्कस किया था। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब ये होता है कि जो काम आपने किया है, मकसद उसमें सब्जेक्ट भी वही है और काम करने वाला भी वही है। देखिए जिस तरीके से यहाँ पे हुआ है कि दे आर टीचिंग देम सेल्स। अब देखिए पढ़ने वाले भी वही है तो पढ़ाने वाला भी वही है। दे आर टीचिंग देम सेल्स, शी स्पीक्स हर सेल्फ। मैं कहूँ जी देखो कमरे में कोई नहीं है, देखो अली किससे बातें कर रहा है कि अली स्पीक्स हिमसेल्फ। ओके, अली स्पीक्स हिमसेल्फ। जब हम कह रहे हैं कि अली स्पीक्स हिमसेल्फ तो अली खुद से बातें कर रहा है। ये बात करने वाला भी अली है और जिससे बातें हो रही हैं वो खुद है। तो दिस इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्सिव केस। ओके, ये इसका रिफ्लेक्सिव केस कहलाता है। और तो हमने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन देखा जो डेमोन्स्ट्रेशन बताए कि दिस दैट दीज दोज। फिर हमने जो है ना वो डेमोन्स्ट्रेशन प्रोनाउन के बाद हमने इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, इंटेंसिव प्रोनाउन को डिस्कस किया जो हमें बताता है इंडेफिनेट प्रोनाउन है जिसमें समवन आर समबडी। फिर हमने इंटेंसिव प्रोनाउन को डिस्कस किया कि जिसमें जो बताता है कि जब आप चीज़ों पे जोर देना चाहते हो कि आई माई सेल्फ वेंट टू इन्वाइट यू। फिर इंटेरोगेटिव प्रोनाउन को हमने डिस्कस किया जो ये बताता है कि हु इज़ योर फादर और व्हाट इज़ योर नेम या विच इज़ योर बुक। तो ये जो है ना इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। फिर हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को बताया जिस तरीके से आइदर और, नाइदर, नॉर या ईच एंड एवरी। डॉक्टर विल गिव मेडिसिन टू एवरी पेशेंट, डॉक्टर विल गिव मेडिसिन टू ईच पेशेंट। अच्छा, अब ईच एंड एवरी का फ़र्क है। ईच का मतलब ये है कि हम ये कह रहे हैं कि डॉक्टर ईच मकसद एक एक बंदे को दवाई देगा, और आप कह रहे हैं कि डॉक्टर सभी को दवाई देगा, डॉक्टर विल गिव मेडिसिन टू एवरी पेशेंट। बात वही है। दो तरीके हैं बात रखने की। आप कह रहे हैं कि डॉक्टर हर एक को दवाई देगा ईच पेशेंट, डॉक्टर सभी को दवाई देगा एवरी पेशेंट। इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटिव में हमने आइदर आर, नाइदर, नार को पढ़ा। फिर रेसिप्रोकल में जब हम यूज़ करते हैं तो उसमें हमने देखा कि किस तरीके से ईच अदर एंड वन एंड अदर। इसमें मैंने आपको बताया कि ईच अदर आप दो के लिए लगाएं और वन एंड अदर दो से ज़्यादा के लिए लगाएं। रिफ्लेक्सिव जो केस होता है उसके अंदर हम ये करते हैं कि जो क्या होते हैं अपना, उसमें सब्जेक्ट वही होता है और काम दोबारा उसी की तरफ वापस जा रहा होता है, तब हम उसको रिफ्लेक्टिव केस कह रहे हैं। वी कॉल इट रिफ्लेक्शन। दे आर टीचिंग देम सेल्स। ओके, या ही स्पीक्स हर सेल्फ। दिस इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्सिव केस। उसके बाद हम रिलेटिव प्रोनाउन पे आते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन वो होता है जो सब्जेक्ट को रिलेट करता है ना, तो इसमें हम हु यूज़ करते हैं। हु का मतलब है ये हु किसी शख्स के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। द टीचर हु टीच इंग्लिश इज़ पोस्टेड। ओके, यहाँ पे हु जो है ना ये रिलेटिव प्रोनाउन है, किसको रिलेट कर रहा है, टीचर को कह रहा है। द पर्सन हुम यू आर कॉलिंग। अच्छा, हुम का मतलब है जिसको, हु का मतलब है जो, हुम जिसको। द पर्सन, अब देखिए द पर्सन से मुराद है एक मखसूस बंदा, हुम यू आर कॉलिंग, जिसको आप बुला रहे हो, इज़ एक्चुअली डेफ। असल में वो बंदा जो है ना वो बहरा है। जिस बंदे को आप बुला रहे हो वो बहरा है। हुम यू आर कॉलिंग, कॉलिंग इज़ डेफ। इसको डेफ पढ़ें। काफ़ी जगह पर ये डीफ पढ़ाया जाता है या पढ़ा जाता है,
प्लीज़ ये डीफ नहीं है, ये डेफ है, इसको डेफ ही पढ़ा जाए तो दैट विल बी अप्रोप्रिएट। द पर्सन हुज वैलेट इज स्टोलन इज वेरी मच वरीड। द पर्सन हुज, अच्छा हु था जो, whom जिसको, whose जिसका, जिसका, वो बंदा जिसका वैलेट गायब हो गया था, whose wallet is stolen is very much worried, okay, जिसका वैलेट गायब हो गया था वो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ है, is very much worried. So that is whose. अच्छा आप that और which, अच्छा that आप पर्सन के लिए भी लगा सकते हो और that आप चीज़ों के लिए भी लगा सकते हो, लेकिन which जो है ना आप सिर्फ जो है ना वो चीज़ों के लिए लगाते हो और वो कभी भी आप जो है ना वो इसके साथ नहीं लगा सकते हो। यहाँ पे ऊपर जिस तरह हु है, अगर हम यहाँ पे चाहें तो हम यहाँ पे दैट भी लगा सकते हैं कि दैट जो है वो इंसान के लिए भी लग सकता है और दैट जो है ना चीज़ों के लिए भी लग सकता है। विच कभी इंसान के लिए नहीं लगेगा और हु कभी चीज़ों के लिए नहीं लगेगा। आप ये नहीं कहेंगे द बुक हु आई परचेज्ड, नो, द बुक दैट आई परचेज्ड, द बुक विच आई परचेज्ड। तो इस बुक को रिलेट करने के लिए जो आप नाउन लगा सकते हो, दैट लगा सकते हो, विच लगा सकते हो। किसी भी शख्स को रिलेट करने के लिए अभी आप दैट लगा सकते हो और हु लगा सकते हो, बट यू कैन नॉट यूज़ दिस दैट। आप विच कभी बंदे के साथ ना लगाइएगा और दैट जो हु कभी चीज़ के साथ ना लगाइएगा। ये ना कहें द कंप्यूटर हु आई परचेज यस्टरडे, नो, यू हैव टू से द कंप्यूटर आई परचेज, the computer that I purchased, the computer which I purchased. So we use this in that sense. Then we come to this finally possessive. Possessive ये होता है, ये मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, पोजीशन का मतलब है जो पोजीशन जाहिर करे, दिस इज अ possessive pronoun। और इसमें जो है ये possessive adjective के तौर पे यूज़ होता है या possessive case के तौर पे यूज़ होता है। इसमें जो possessive adjective हैं my, are, your, his, her, its, their और माइन, योस, योस, आस, योस, इसको पढ़ें योस, योस, आस, आस, इसको पढ़ें आ, ओ यू आर, आ, वाई ओ यू आर, यो, 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 योर न कहें, यो, कहें ह, ह, देयर, देयर। सो दिस वे यू कैन जस्ट यूज़ दिस पॉजिटिव केस। ये आपको बताते हैं कि जो है इसका मालिक कौन है। इसमें सबसे जो बड़ी गलती करते हैं वो हम जो है यूज़ करते हैं कि पॉजिटिव केस के ऊपर जो अपस्ट्रॉफी लगाते हैं। ये बहुत एक कॉमन मिस्टेक है जो हमें नहीं करनी चाहिए और इसमें हमें केयरफुल होना चाहिए। दिस बुक इज़ हर्स, यहाँ पे देखें नहीं हर्स है, इस पे जो है ना पॉजिटिव अपस्ट्रॉफी नहीं है। यू आर माइन, ओके, ये जब भी आते हैं ये सेंटेंस के आखिर में आते हैं। दीज बुक्स आर आर्स, ओके, दीज बुक्स आर आर्स, ओके, या दिस पेन इज योर्स, दिस पेन इज योर्स। अब देखिए जो योर्स है इसको हम कभी भी जो है ना वो इसके ऊपर अपस्ट्रॉफी नहीं देंगे, जो अक्सर हमारे साथी दे देते हैं, दैट इज़ इनकरेक्ट, ओके। सो डोंट यूज़ अपस्ट्रॉफी विद दीज टाइप ऑफ पॉजिटिव्स। सिर्फ एक वन जो है ना आपस है जिसको हम अपस्ट्रॉफी देते हैं, यह वाहिद एक वन है जिसको अपस्ट्रॉफी दी जाती है, बाकी कहीं भी नहीं दी जाती। तो डू अवॉइड दीज, ओके। जो ना अब जो नाउन है, प्रोनाउन है, इनको तीन कैटेगराइज तरीक़ों में हम कैटेगराइज करते हैं, फर्स्ट पर्सन में, सेकंड पर्सन में, थर्ड पर्सन में। फर्स्ट पर्सन वो होता है जो काम करता है, सेकंड पर्सन वो जिससे हम मुखातिब होते हैं, या फर्स्ट पर्सन वो जो बात करता है, मुतकल्लिम होता है, कलाम करता है, और सेकंड पर्सन वो जिससे बात की जाती है। थर्ड पर्सन वो होता है जिसकी बात होती है, वो वहाँ मौजूद नहीं होता। अभी मैं बोल रहा हूँ तो आई फर्स्ट पर्सन, अगर हम ज़्यादा होते तो वी फर्स्ट पर्सन बनेगा और यू सेकंड पर्सन बनता है, या और फिर ही, शी, इट, दे, ये थर्ड पर्सन है जिसका जिक्र होता है। तो ये प्रोनाउन है। अब जिस तरह मैंने कहा कि जब भी आप प्रोनाउन को पढ़ते हो तो उसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जिस पे आपको काम करना चाहिए, जिस पे आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए, दैट इज़ कॉल्ड केसेस ऑफ प्रोनाउन, ओके। इसके केस बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अभी हम थोड़ा केसेस को डिस्कस करेंगे कि हाउ दीज केसेस वर्क इन अ सेंटेंस, इनका काम क्या है। तो अभी इस टाइम ये केसेस की टेबल आपके सामने खुली हुई है। वी हैव दीज डिफरेंट केसेस ऑफ प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो इसमें पहला जो केस आता है वो सब्जेक्टिव केस होता है या नॉमिनेटिव होता है। इसका मतलब ये है कि ये काम करता है। आई टीच यू, आई काम कर रहा है। वी टीच यू,
यू टीच मी। अच्छा, एक बात यहाँ पे क्लियर करूँ कि ये जो दो है, पुरानी जितनी भी आप अंग्रेज़ी पढ़ेंगे उसमें ये वर्ड होगा दो, यू की जगह पर यूज़ होता था। जिस तरह अभी मैं कहूँ कि यू आर माई टीचर, दो आर माई टीचर, ये पुरानी जगह पर पुरानी इंग्लिश में यूज़ होता है। अभी भी आप कुरान मजीद, बाइबल, भगवत गीता, इस तरह के अगर किताबें पढ़ेंगे उनके तर्जमे में ये जो क्लासिकल इंग्लिश टर्म्स हैं ये वहाँ पे यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे मैंने इस टेबल में इसको इसलिए रखा है कि आप इससे वाकिफ़ हों और कभी इसके सामना हो तो आप कंफ्यूज ना हों। तो आप इसको दो बिल्कुल यू है, दो आर माई फ्रेंड, यू आर माई फ्रेंड, आई टीच यू, आई टीच दी एंड तो ये जो भी हैं ये काम करेंगे, ये सब्जेक्ट ये वो है, इनकी तरफ काम होगा। आई टीच यू, मैं आपको पढ़ाता हूँ, यू टीच मी, आप मुझे पढ़ाते हैं। तो यहाँ पे यू काम कर रहा है, मी उसका ऑब्जेक्ट है। या शी टीचेस मी, शी काम कर रही है, मी ऑब्जेक्ट है। जब आई काम करेगा तो ये नहीं कहेंगे मी टीच शी, नो, आई टीच हर, आई टीच हर, शी टीचेस मी, we teach her, she teaches us, she teaches us, he teaches me, I teach him। तो इस तरीके से ये जब भी यूज़ होंगे ये सब्जेक्टिव केस हमेशा काम करेंगे। ऑब्जेक्टिव केस जब भी यूज़ होते हैं कि ये जो है ना ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज़ होते हैं, ये इनकी तरफ काम होता है। पॉजिटिव जो केस होते हैं ये पोजीशन को जाहिर करते हैं और ये सेंटेंस के हमेशा आखिर में आते हैं। पॉजिटिव और पॉजिटिव एडजेक्टिव का जो फ़र्क है ये मैं समझा दूँ। इनमें बहुत एक लतीफ़ सा फ़र्क है। अब अक्सर जब हम स्टूडेंट से कहते हैं कि दिस इज़ माई बुक, दिस बुक इज़ माइन, तो स्टूडेंट से अगर पूछो कि इसका मतलब इसमें फ़र्क क्या है तो वो कहते हैं सर ये दोनों सेम है, दिस इज़ माई बुक एंड दिस बुक इज़ माइन। हालांकि ऐसा नहीं है कि इसके अंदर फ़र्क है, बिल्कुल जो है ना वो डिफरेंट है। असल जो चक्कर है वो जाहिर करता है कि आप जब ये कह रहे हो कि दिस इज़ माई बुक तो आप पोजीशन की बात कर रहे हो कि जब हम कह रहे हैं कि दिस इज़ माई बुक एक सेंटेंस है और दूसरे में आप कह रहे हैं कि दिस बुक इज़ माइन। अब अगर इन दोनों सेंटेंस को देखा जाए तो आपको आम बंदा समझेगा कि ये एक ही चीज़ है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। देखो, ज़बान का उसूल होता है, पूरी दुनिया की जितनी भी ज़बानें हैं उसमें एक चीज़ उसूल है कि आपको जिस चीज़ का से गर्ज होता है, जिस चीज़ की अहमियत होती है, आप उससे बात शुरू करते हैं, आप उस बात को पॉइंट आउट करते हैं जिससे आपको गर्ज होता है। तो मतलब ये है कि अगर मैं आपसे पूछूंगी जी क्या खा रहे हो तो आपका जवाब उस चीज़ से शुरू होगा जो आप खा रहे हो। आपका जवाब मैं से शुरू नहीं होगा कि मैं सेब खा रहा हूँ। मैं पूछूंगा जी क्या खा रहे हो, सर सेब खा रहा हूँ। देखिए बात सेब से शुरू हो रही। क्या पढ़ रहे हो, अंग्रेज़ी पढ़ रहा हूँ, मैं अंग्रेज़ी पढ़ रहा हूँ, ऐसी बात आप नहीं करेंगे, आप बात अंग्रेज़ी से शुरू करेंगे। तो सवाल ये तमाम ज़बान के अंदर कॉमन एक मुद्दा होता है, एक तरीक़ेकार होता है। इसी तरह अगर आप अंग्रेज़ी को देखेंगे तो इसके अंदर भी ये है। अब इसका फ़र्क क्या है, ऊपर वाला जो है माय जो है ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है, ये माइन जो है ये पॉजिटिव केस है। ये यहाँ पे एडजेक्टिव देखें ना, ये बुक के आगे खड़ा है तो ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, तो ये पॉजिटिव एडजेक्टिव कहलाता है। तो अब ये जो माइन है ये सेंटेंस के आखिर में आ रहा है। अब यहाँ पे जो दिस प्रोनाउन था तो माय एडजेक्टिव था, और यहाँ पे देखो दिस जो है ना वो एडजेक्टिव बना हुआ है। कैसे, अब ये दिस बुक, ये बुक को क्वालिफाई करा, बुक नाउन है, तो ये जो दिस यहाँ पे प्रोनाउन था ये दिस यहाँ पे एडजेक्टिव बन गया। ये जो माय यहाँ पे एडजेक्टिव था ये माइन यहाँ पे प्रोनाउन बना हुआ है। देखें इस तरह सेंटेंसेस के अंदर ये जो वर्ड क्लासेस हैं अपने सिचुएशंस को चेंज करते हैं। तो जो पहला सेंटेंस है कि दिस इज़ माय बुक, यहाँ पे अहमियत किसकी है, इसमें अहमियत माय की है। इसका मतलब ये मेरी किताब है। तो अहमियत बुक की नहीं है, मालिक की है, ओनर की है। यहाँ पे हम जो अहमियत दे रहे हैं वो हम दे रहे हैं ओनर कौन है, ओनर की अहमियत है। और जो नीचे वाला सेंटेंस है उसी के अंदर पोजीशन की बात हो रही है। मकसद जो चीज़ है ना, जो प्रॉपर्टी है, जो पोजीशन है, उसकी बात हो रही है कि वो चीज़ किसकी है। पोजीशन जो थिंग की हम बात करें, बुक इज़ माइन, ओके, पोजीशन ऑफ थिंग, ओके, कि आप वो किस चीज़ की बात हो रही है वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्ट पोजीशन, जिस ऑब्जेक्ट को आप जिक्र कर रहे हैं तो उसकी आप जो है ना पोजीशन की बात करें। देयरफॉर दिस इज डिफरेंट देन द फर्स्ट वन, ओके। अब इसको और मज़ीद क्लियर करूँ ना, माय और माइन को।
आप कहते हैं कि दिस माई पेन, दिस माई बुक, दिस माई कंप्यूटर। आप क्लास में पढ़ रहे हैं, आप क्लास से चले गए, आपने कुछ चीज़ें वहाँ पे मिस हो गई, बहुत से साथियों की मिस हो गई। हमें उस क्लास से एक सेल फ़ोन मिला है, एक कैलकुलेटर मिला है और एक वॉच मिली है। अगले दिन जब आप क्लास में आते हैं तो मैं क्लास में अनाउंस करता हूँ, जी कल आप जब क्लास से गए थे तो कुछ चीज़ें आपकी मिस हो गई थी जो हमें मिली हैं, तो आप बताएं आप में किसकी चीज़ें हैं। हमें एक फ़ोन मिला है, एक कैलकुलेटर मिला है और एक वॉच मिली है। तो आप फ़ौरन खड़े होकर कहेंगे सर फ़ोन इज़ माइन। सेंटेंस कहाँ से शुरू हो रहा है, गौर करें, देखें। आप ये नहीं कह रहे कि सर दिस इज़ माई फ़ोन, ना 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 ना, आपने कहाँ से बात शुरू की, आपने कहा सर फ़ोन इज़ माइन। इसका मतलब ये कि आपकी अहमियत मालिक की है या चीज़ की है। इस टाइम आपका जुमला कहाँ से शुरू हो रहा है, फ़ोन से शुरू हो रहा है, चीज़ से शुरू हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप चीज़ पे फोकस करना चाह रहे हो, इसलिए आप कह रहे हो कि फ़ोन इज़ माइन, बुक इज़ माइन, खा इज़ माइन। इसी तरीके से जो पॉजिटिव और पॉजिटिव एडजेक्टिव का जो डिफरेंस है इसको आपके सामने रखा है कि जो सब्जेक्टिव केस होता है वो आपको हमेशा नाउन के बारे, वो जो है ना सब वर्ब के बारे में बताता है, ये काम करते हैं। सब्जेक्टिव केस आई टीच, वी टीच। ऑब्जेक्टिव जो केस होते हैं इनकी तरफ काम होता है, और जो पॉजिटिव केस होते हैं ये हमेशा जो है अपना बताते हैं जहाँ, लेकिन ये इसको हम तब यूज़ करते हैं जब हमें ऑब्जेक्ट के बारे में बताना हो, चीज़ के बारे में, पोजीशन के बारे में बताना हो कि किस चीज़ की मिल्कियत के बारे में ज़िक्र हो रहा है। जिस चीज़ की मिल्कियत के बारे में ज़िक्र हो रहा है उस चीज़ से पे अगर बात करनी है तो आपको पॉजिटिव केस यूज़ करना चाहिए कि घर मेरा है, हाउस इज़ माइन, गाड़ी मेरी है, कार इज़ माइन। गाड़ी मेरी है, बाकी इसके अंदर असला किसने रखा है आई डोंट नो। बुक इज़ माइन, कार इज़ माइन। इसी तरीके से हम ये यूज़ करते हैं पॉजिटिव केस। बाकी जहाँ तक पॉजिटिव एडजेक्टिव की बात है तो जहाँ पे आपको ओनर को वाजे करना हो, मालिक को वाजे करना हो, तो आप हमेशा पॉजिटिव एडजेक्टिव लगाओ कि माई बुक, किसकी किताब है सर, दिस इज माई बुक। देखिए यहाँ पे माई पहले आ रहा है, किताब बाद में, तो ये इसका केस होता है। बाकी रिफ्लेक्सिव केस में आपको बता चुका हूँ कि आई का रिफ्लेक्सिव माई सेल्फ होता है, आई का आर जो आ का आर सेल्फ, यू के दो रिफ्लेक्सिव केस है। यू अगर सिंगुलर है तो योर सेल्फ होगा, लेकिन अगर यू प्लूरल है तो इसका फिर योर सेल्व्स होगा। इसी तरीके से दाई सेल्फ और दाई सेल्फ जो है ना उसी को भी आप यूज़ करेंगे दाई के हवाले से। एंड देन यू कम टू दिस ही का हिम सेल्फ, हर सेल्फ, आर इट सेल्फ, आर देम सेल्फ, आर वन सेल्फ। तो ये जो है इस प्रोनाउन के केसेस का जो इस्तेमाल है इसके बारे में। अब रिफ्लेक्सिव के इस्तेमाल मैंने आपको ऊपर पढ़ा दिए। इस केस को आप दो तरीक़ों से इस्तेमाल करते हो। अगर शिद्दत पैदा करनी होती है इंटेंसिटी के लिए तो आप इसको इंटेंसिव केस के तौर पे यूज़ करते हो, फ़ौरन सब्जेक्ट के बाद रख देते हो कि आई माई सेल्फ इन्वाइटेड यू, मैंने ख़ुद तो आपको दावत दी थी। ये जो है ये इसका मतलब इंटेंसिव केस है। और आप मेरे पास दावत ले आए, मैं आपसे पूछूं कि जी आपको किसने कहा या आपने ये कैसे दावत दी, तो आपने कहा सर आई इन्वाइटेड माई सेल्फ, बस मैंने खुद ही दावत दी है। ये जो लास्ट में जब आता है तो रिफ्लेक्सिव केस कहलाता है। तो डियर स्टूडेंट, आज के इस पूरे चैप्टर में हमने प्रोनाउन को देखा, उसके काइंड्स को देखा, उसके केसेस को देखा, और सबसे आखिर में जो चीज़ मैं आपसे डिस्कस करूँगा दैट इज़ कॉल्ड ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन को हम कैसे किस तरतीब के साथ रखते हैं ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। और इसके बाद हम चले जाएंगे सेमेंटिक्स की तरफ। तो देखें, अब अगर नाउन जो हैं उसमें एक चीज़ का ख्याल रखें कि अगर नाउन सिंगुलर हैं तो हम सेकंड पर्सन कम्स फर्स्ट, देन फर्स्ट पर्सन एंड देन कम्स इन द एंड कम्स लाइक दैट। ओके, तो द सेकंड पर्सन इन सिंगुलर कम्स फर्स्ट एंड द फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कम्स इन एंड। अब अगर तीन प्रोनाउन हैं, सिंगुलर हैं, देखिए ही सिंगुलर है, शी सिंगुलर है, यू सिंगुलर है, आई सिंगुलर है, तो आई फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है, ही शी थर्ड पर्सन है। अगर ये तीनों एक सेंटेंस में आ जाएं तो हमारी तरतीब क्या होनी चाहिए? तो उसका तरीक़ेकार ये है कि आप हमेशा सेकंड पर्सन सिंगुलर को पहले रखो और फर्स्ट पर्सन सिंगुलर को आखिर में रखो। बाकी थर्ड पर्सन है तो वो सेकंड पर्सन के बाद आएगा। अगर आपके पास सिर्फ दो हैं, थर्ड पर्सन है और फर्स्ट पर्सन है ना, तो आप सेंटेंस थर्ड पर्सन से शुरू करो। ही एंड आई आर गोइंग टू कराची। ही एंड आई फर्स्ट पर्सन है, इसको आखिर में रखो। आई एंड ही ना बोलो, फर्स्ट पर्सन से ना शुरू करो।
अगर सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन है तो आप कहो कि यू एंड आई आर गोइंग टू कराची। अगर सेकंड पर्सन है और थर्ड पर्सन है तो पहले सेकंड पर्सन को रखो यू एंड शी। अब देखिए यहाँ पे यू सेकंड पर्सन है, फिर फर्स्ट पर्सन है, यहाँ पे यू सेकंड पर्सन, ही थर्ड पर्सन और आई फर्स्ट पर्सन है। यहाँ पे सिर्फ सेकंड पर्सन है और थर्ड पर्सन है। तो सिंगुलर का रूल ये कहलाता है कि यू हैव टू बिगिन विद सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन, अगर प्रोनाउन सिंगुलर हो। बट इफ़ द प्रोनाउन आर प्लूरल, अगर प्लूरल हैं तो हमें क्या यूज़ करना होगा, वी हैव टू यूज़ टू देन फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो आपको फर्स्ट सेकंड पर्सन प्लूरल, देन थर्ड पर्सन प्लूरल फॉलोज रिस्पेक्टिवली। ओके, तो फर्स्ट सेकंड इसमें हमें ये तरतीब रखनी होती है कि आपने इन तमाम को जो है ना वो फर्स्ट सेकंड थर्ड, वी यू एंड दे आर गोइंग टू कराची। इसमें देखिए पहले फर्स्ट पर्सन है वी, फिर सेकंड पर्सन है, फिर थर्ड पर्सन है। तो ये वर्ब जो प्रोनाउन की तरतीब है इसमें थोड़ा जहन में रखा करें। जब सिंगुलर होता है तो हम पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन रखते हैं, और जब प्लूरल होते हैं तो पहले हम फर्स्ट पर्सन रखते हैं, वी प्लूरल है, फिर यू प्लूरल है, फिर दे प्लूरल है। तो ये तरीक़ेकार होगा। अब अगर मिसाल के तौर पे आपके पास सेकंड पर्सन यहाँ पे नहीं है तो कोई बात नहीं, आप पहला फर्स्ट पर्सन रखें, फिर थर्ड पर्सन रखें। आपके पास फर्स्ट पर्सन नहीं है तो पहले आप यू रखें, फिर दे रखें। ये तरतीब जहन में रखें व्हेन यू आर गोइंग टू डील विद दिस प्रोनाउन। सो हियर we are going to cover this and then we will move forward. Okay. So in today's class specifically we talked about pronoun. Pronoun, we say that is a representative, just replaces a noun in a sentence, and it controls that monotony of a noun, and it brings variety in your language. And on other side, we talked about that how can we use intensive pronoun, how can we use reflexive pronoun, how can we use interrogative pronoun, how can we use reciprocal pronoun, and how can we use indefinite pronoun, their usage, and then we talked about its cases in order. So this section of syntax is over, this first part. Now we would go to the second part, and that is on that listening and reading, and that is designed for syntax. So let us go for the second session of semantics. Sorry. First we simple repeat the previous video and then we will cover the new. Now where are you up to? I'm going to find out. Ah, I see. Well, dinner's at 6. Don't be late. Thank you. You're welcome. You're like, Thank you. Gotta go. Ah, so did you find him? God is a woman, Mom, and she has the most beautiful smile I've ever seen.
Why are you in such a good mood? I just ate Twinkies in the park with God. He's much younger than I expected. Now look at that, okay. In this video, what do you think, okay? Who does go to find God, okay? Whether the mother is going to find the God, the boy is going to find God. Yes, it is not mother, but the boy is going to find God. And where does he go? Does he go in a market? Does he go in a park? He goes to a park. Who does he meet to? Now see, look here, I'm using pronoun who. Who does he meet to? He meets a man. He meets a woman. No, he doesn't meet a man. He may meets a woman. And the woman is very rich. No, the woman is not rich. The woman is a poor. The boy shares money with the woman. Does the boy share money with the woman? No, the boy doesn't share money with the woman. The boy shares snacks and juice. The lady doesn't accept snacks. No, she accepts. Do they laugh together? Yes, they do. अच्छा एक बात यहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त बता दूँ. इस तरह के जब जवाबात होते हैं वो आकर तकरीबन उस हेल्पिंग वर्ब पे ख़त्म कर दिए जाते हैं पर्टिकुलर बोलने में. जिस तरह अभी मैं कह रहा हूँ, डू दे लाफ? यस दे डू. या डू दे प्ले? यस दे डू. या नो दे डोंट. नो दे डोंट. यस दे डू. Does your teacher teach? Yes, they do. No, they don't. Do you go to school? Yes, I do. No, I don't. इसमें पूरा सेंटेंस आगे मत बोला करो. Yes, I go to school. No, I don't go to school. पूरा सेंटेंस मत बोला करो. जब हम बोलते हैं तो यहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब पे उस सेंटेंस को ख़त्म करते हैं. ये उस लैंग्वेज की खूबसूरती होती है. तो इसी को जो है ना हम यूज़ करें अपनी लैंग्वेज में, और ये टेक्निक आप भी ये सीखें. सो इन दिस क्लिप ओके वी सी दैट द बॉय इज सी ए स्मॉल बॉय हु पिक्स स्नैक्स एंड जूसेस. व्हाट अबाउट स्क्रीन? इज इट क्लियर नाउ और स्टिल देयर इज अ प्रॉब्लम? आई थिंक होप इट विल बी क्लियर नाउ. Yes, that's good. Okay. Now it's clear. That's nice. So this basically, because I have changed my network, multiple networks I am trying for you guys. My actual target is that to reach you in each sense. It's clear. That's good. Okay. So that's way it's a snack is they eat and laugh and enjoy together. When they return with a happy mood, the small cute boy tells his mother that God is a woman and has a very beautiful smile on her face. Okay, and here the boy, what is the comments of the boy? That God is a woman and God has a very smile face on his like that. That is the boy's point of view. But when we find the other point of view on the part of that girl and the woman, goes and tells another lady that God is younger, smaller and cuter. God, अब देखिए यहाँ पे हम adjectives की degrees use करेंगे. God is young, not young, younger, youngest, small, smaller, smallest, cute, cuter, cutest. Okay. अब जो है ना कल जो नेक्स्ट हमारा सेशन एडजेक्टिव पे होगा, तो एडजेक्टिव पे मैंने हमेशा कहा है कि उसको हम डिग्रीज पे काम करेंगे. तो उस डिग्रीज का फंक्शन क्या होता है वी विल कवर इन नेक्स्ट क्लास. सो गॉड इज यंगर एंड स्मॉलर एंड क्यूटर. ओके, देन शी एक्सपेक्टेड. ओके, सो डोंट फाइंड गॉड इन स्काई और हेवन बट फाइंड गॉड हिम. अब यहाँ पे हिम का देखें एच कैपिटल किया गया है. ये हिम वैसे तो प्रोनाउन है, लेकिन चूंकि यहाँ पे गॉड को रेफर करा है, सो वी हैव जस्ट मेड इट्स अ कैपिटल.
him. Okay, him is made capital. Okay, so this was a previous class, okay, video, and now watch the new video, and then we will talk about semantics. Now look that this is really wonderful video. Okay, I like it, and I always refer to my students to watch this video. Basically, that's all about the inspiration, that how we change in life and how things they change in our life. They are really meaningful, and this change is very meaningful in our life, and it depends that how we reflect this change in our life. Challenges are here. Okay, in this video clip we see how an eagle goes through a painful process of a change. इस वीडियो में हम देखते हैं कि एक जो ईगल है वो किस तरीके से एक इंतहाई दर्दनाक पेनफुल प्रोसेस, यहाँ पे पेनफुल एडजेक्टिव है, प्रोसेस नाउन है, उस तब्दीली चेंज तब्दीली के प्रोसेस से किस तरह गुजरता है टू लिव अ ग्रेसफुल लाइफ. अब ग्रेसफुल एडजेक्टिव है जो लाइफ के बारे में, नाउन के बारे में बता रहे. ग्रेसफुल का मतलब है बावकार. एक ईगल को बावकार ज़िंदगी गुजारने के लिए किस तरीके से तब्दीली से गुजरना पड़ता है. When an eagle reach to the age of 40, जब एक ईगल 40 की उम्र पे पहुंचता है, इसे टैलेंट्स का मतलब है उसके पंजे. टैलेंट्स बिकम हार्ड, उसको हार्ड और सख्त हो जाते हैं. इन कैनॉट कैच प्रे, उस शिकार को, प्रे का मतलब है PREY, प्रे मीन शिकार. कैंट कैच प्रे, वो शिकार को नहीं पकड़ सकते. कैच प्रे. इस लॉन्ग एंड शार्प बीक, उसकी जो लंबी लॉन्ग एंड शार्प बीक जो उसकी चोंच होती है, जो लंबी और तेज चोंच होती है, बिकम्स हार्ड, वो बहुत ज़्यादा सख्त हो जाती है. एंड बेंड का मतलब है मुड़ जाना, वो सख्त हो जाती है और मुड़ जाती है. इस फीदर्स बिकम हार्ड, उसके जो पर होते हैं वो बहुत ज़्यादा सख्त हो जाते हैं. एंड स्टक अगेंस्ट इस चेस्ट, और वो जो पर होती हैं वो उसकी छाती के अगेंस्ट
चिमट जाते हैं, एंड ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब है रुकावट डालना, ऑब्स्ट्रक्ट्स इट्स फ्लाइट, और जब वो अपनी फ्लाइट भरता है तो वो पर उसके लिए रुकावट पैदा करते हैं। द ईगल इज़ लेफ्ट विद 2 ऑप्शंस, उस टाइम इसके पास 2 चॉइसेस होती हैं, आइदर टू डाई, या तो वो मर जाए, और गो थ्रू अ पेनफुल प्रोसेस ऑफ ए चेंज, या एक इंतहाई दर्दनाक तकलीफ़ दे पेनफुल प्रोसेस, तकलीफ़ दे प्रोसेस से गुजरे, अपने आप को तब्दील करे, एंड लिव मोर 30 ईयर्स, और उस प्रोसेस से गुजरने के बाद और 30 साल की बावकार ग्रेसफुल ज़िंदगी गुजारे। So the change is there. Okay. Now there is a challenge. Okay. The challenge is what? The challenge is that it has to go through a painful process. The eagle goes to the top of a mountain. यही ईगल एक ऊंचे पहाड़ों पे जाता है, and starts to strike its beak against the rock. और अपनी जो चोंच है वो पहाड़ से, सख्त पहाड़ से टकराना शुरू कर देता है। यहाँ पे देखिए अगेंस्ट हम लगा रहे हैं प्रेपोजिशन, अगेंस्ट द रॉक, पहाड़ से टकराता है, until it breaks, जब तक वो उसकी बीक जो है, जो चोंच है, वो टूटती नहीं है। वो अपनी, क्योंकि वो मुड़ जाती है, अब शिकार को नहीं पकड़ सकती, तो ये वो उस मुड़ी हुई बीक को तोड़ता है। देन इट पलक्स इट्स थैलन, उसके बाद अपने पंजे तोड़ता है। देन फीदर्स, उसके बाद अपने पर निकालता है। आफ्टर बियरिंग दिस पेन, और ज़ाहिरी बात है जब चोंच टूटेगी, पर निकलेंगे, पर टूटेंगे, और जो ना ये थैलन पंजे टूटेंगे तो कितना दर्द होगा, लेकिन ये दर्द को बियर करना, बर्दाश्त करना, आफ्टर बियरिंग दिस पेन, इतना दर्द बर्दाश्त करने के बाद इट्स गेट्स रीबर्थ टू टेक इट्स फेमस फ्लाइट, उसके बाद वो दोबारा जन्म लेता है और अपनी वो मशहूर फ्लाइट दोबारा भरता है। लाइकवाइज इफ़ वी वांट टू चेंज आवरसेल्व्स, बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम भी अपने आप को तब्दील करना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू चेंज, देन वी टू मस्ट अंडरगो द पेनफुल प्रोसेस ऑफ ए चेंज, तो हमें भी उस पेनफुल प्रोसेस से गुजरना होगा। टू डू दैट, और वो करने के लिए वी मस्ट अनप्लग आवर अनप्लेजेंट मेमोरीज। हमारे जहनों में क्या है, एक मेमोरीज़ हैं अनप्लेजेंट, वो होती हैं जो नाखुशगवार मेमोरीज़ होती हैं, कुछ नेगेटिव हैबिट्स होती हैं, एंड फिक्स्ड माइंड सेट है। फिक्स्ड माइंड सेट क्या, क्योंकि मैं तो अक्सर कहता हूँ कि हम जिस समाज में पैदा हुए हैं इसमें 70 to 80% लोग पैदा ही इसलिए हुए हैं कि वह दूसरों को मायूस करें, नाराज़ करें, उदास करें। आप उनसे कोई भी काम बताएं, वो आपको उस काम न करने के 1000 बहाने बताएंगे, लेकिन कभी भी वो चीज़ आपको इंस्पायर नहीं करेंगे कि येस यू कैन डू इट, ओके। तो एक्चुअली क्या होता है कि जब भी आप काम करें तो आपके पास ये माइंड सेट खड़े हो जाते हैं कि नहीं जी हम गरीब हैं, हम तो कर नहीं सकते, जी नहीं पाकिस्तान में तो ऐसा होता नहीं है, जी ये तो चीज़ यहाँ पे मुमकिन नहीं है, 1000 चीज़ें। अभी इस टाइम मुझे नहीं पता कि मुझे कितने स्टूडेंट्स देख रहे हैं, लेकिन मुझे जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं आई एम हैप्पी विद दैट। देखिए ज़िंदगी का मकसद ये नहीं होता, आप जो है ना वो आप जब स्टार्ट करते हैं, मैंने पढ़ाना शुरू किया था, मुझे याद है मैं बदीन में मेरे पास पहले 3 या 4 स्टूडेंट्स थे जिसको मैंने पढ़ाना शुरू किया, और हम वो तब तो इतनी अब टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, एक रेडियो वगैरह होता था उसमें हम लगा के और जो है ना वो लिसनिंग करते थे, और बाकी जो स्टूडेंट्स आते थे या बाकी जो स्टूडेंट्स हमें अजीब तरीके से देख रहे होते थे, तो वो 3 या 4 स्टूडेंट्स, और मैं उन 3-4 स्टूडेंट्स को भी 2-2 ढाई घंटे बैठकर पढ़ाता था। सब लोग कहते थे पता नहीं है क्या हो रहा है, अब 2 स्टूडेंट्स पे ढाई घंटे की क्लास। लेकिन बाद में एक चीज़ हुई कि यही हुआ कि उसी क्लास में फिर बैठने की जगह नहीं मिल रही थी। तो दैट इज़ वेयर स्टॉप दिस नेगेटिव माइंड सेट, ओके, डोंट फॉलो द पीपल। ये नए शेयर हैं, इनका काम ही आपको नाराज उदास करना है। और दूसरी बात है एक फिक्स माइंड सेट होता है, या कुछ आपके नेगेटिव हैबिट्स होती हैं, जो भी सर हम नहीं पढ़ते, बस मुझे पढ़ने से एलर्जी होती है, मुझे ये होता है वो होता है, ये सब आदतें हैं। आदतें क्या हैं, आपने सब अडॉप्ट की हैं। इफ़ यू वांट टू चेंज यू कैन चेंज इट, ओके। सो यू आर लाइक दिस ईगल, ओके। द हाउ सी द ईगल को क्या करता है, ईगल इज इन अ प्रॉब्लम। 40 years के बाद नाउ ही कैच हिज टेल एंड कांट कैच द प्रे, हिज बीक इज जस्ट अ बेंट, इट इज़ हार्ड, and his wings are hard, feathers are hard, okay, they stuck against his chest, he can't move, he can't fly, he can't catch his prey. So what is the result? The result is that either to die hungry or to just go through the painful process. And what does the eagle choose? Does it choose to die? Does it choose to stay passive? No, the eagle doesn't choose to stay passive.
it becomes active. And what does it do? It accepts pain, it breaks its beak, it plucks its talon, it plucks its feeder. Then the new beak, the new talon, the new feeders. And after that, it just takes us a famous flight, very famous flight, very powerful flight. And that power, that is the beauty of your life. So that's how this was a completely listening session. Now go to your reading session. This will be the last session of this class. Okay, come to this reading. We covered these different previously, and the last hour was about this was a false sex. Okay, false sex are very important in life. Okay, and last we talked about developing an illusion, how this illusion they create a misunderstanding in our life. Okay, that's very important. Today's topic is also an illusion, this illusion part 2. So please, it's your reading time, read it, understand it, guess it, and then I will come to explain it. Thank you. So well, this is illusion. Illusion मैंने कल बताया था कि मुगालता, गलत फहमी, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग. Once upon a time there lived an owl. Okay, एक ज़माने की बात है कि एक उल्लू रहा करता था. There lived an owl that built its nest in a tower. उसने अपने टावर में एक जो ना वो जो टावर था उसी में अपना घोंसला बनाया हुआ था. टावर, इसको प्रोनाउंस करें टावर, टावर, टावर. देखिए ये वही रूल का आर वाला रूल आ रहा है जिस तरह जो मैंने आपको पहले बताया था. वी डोंट कॉल इट टावर इन पावर. ओके, सो पावर, टावर, नेस्ट इन अ टावर एंड विद एन आईवी. बस आईवी, आईवी एक बेल होती है जो दीवारों पे, दरख्तों पे या जो पोल वगैरह होते हैं उनके ऊपर एक बेल होती है जो ऊपर पत्ते वाली बेल होती है जो ऊपर चढ़ जाती है. तो उसी आउल ने उसके ऊपर जो है अपना घोंसला बनाया हुआ था, उसी के ऊपर टावर के ऊपर. Whenever the wind blew, अब देखें यहाँ पे ये पूरी हम पास्ट टेंस में बात करें तो इसमें जितने भी वर्ब हम यूज़ करें वो पास्ट में यूज़ करें. द विंड ब्लू, ब्लू. अच्छा, इसको ब्लू पढ़ा करें, यहाँ इसको बिल्यू नहीं कहते. जिस तरह GREW होता है ना, जिसको हम कहते हैं गुरु, गिराओ, गुरु, गुरु, गुरु. अच्छा, इसको हम जो है ना गलत पढ़ते हैं, गिरियू, गिरियू कहते हैं, जो कि हमें नहीं, गिरियू नहीं कहना चाहिए. गुरु, गिराओ, गुरु, ग्राउंड, या ब्लाओ, ब्लू, बिल्लू. इसे बिल्लू पढ़ें, या बिल्यू ना कहें.
when the wind blew, it caused leaves to move. तो जब हवा लगती थी तो पत्तों को हिलाती थी. It caused the leaf to move. Okay. It caused, ये जो है ना वो हम यहाँ पे causative verb यूज़ करें. It caused the leaves to move. तो ये पत्तों को हिलाती थी. तो एक उल्लू था, उसने अपना उस टावर पे घर बनाया था और वो टावर पूरा जो ना बेल से ढका हुआ था. लेकिन जब हवा लगती थी तो पत्ते हिलते थे, तो उससे जो है एज ए रिज़ल्ट, अब यहाँ पे देखें एज ए रिज़ल्ट कंजक्शन लगा रहे हैं उस बात को, अगली बात को पिछली बात के साथ कनेक्ट करने के लिए. एज ए रिज़ल्ट उसका नतीजा यह निकलता था कि द मून वुड स्टार्ट ग्लिम्पसिंग इनटू द बो. जो ही हवा लगती थी तो वो जो पत्ते हिलते थे तो अंदर जो है ना वो चांद झलकना शुरू कर देता. ग्लिम्पसेस होते हैं किसी की जो झलक होती है. द मून वुड स्टार्ट ग्लिम्पसिंग इनटू द बो. वो जो अंदर बैठा हुआ था, उल्लू बैठा होता था, उसको अंदर जो है ना वो चांद की झलक नज़र आती थी या चांद अंदर झलकना शुरू कर देता था. सो द आउल, वन सच नाइट व्हेन इट वाज अ फुल मून नाइट. अच्छा, जो 14वीं की रात होती है वी कॉल इट अ फुल मून नाइट. एक रात जो असल में 14वीं की रात थी, द आउल स्टार्टेड येलिंग एट द मून. तो अचानक उस उल्लू ने चांद के ऊपर चिल्लाना शुरू किया. टू येल मैंने कल भी बताया था, और इसके साथ देखिए प्रेपोजिशन एट लगता है. हम आप कहते हैं ना प्लीज़ ये मेरे ऊपर जो ना वो प्लीज़ स्टॉप शाउटिंग एट मी. व्हाई आर यू शाउटिंग एट मी? शाउट एट, येल एट. ओके, जो बंदा ऊंची आवाज़ में बातें करते हैं ना, येलिंग, व्हाई आर यू येलिंग एट मी. तो अचानक इस उल्लू ने चिल्लाना शुरू कर दिया चांद के ऊपर. ये आगे इन्वर्टेड कामा शुरू हो रहा है. इन्वर्टेड कामा हम तब यूज़ करते हैं जब किसी के भी मुंह के कहे हुए अल्फाज एग्जैक्ट हमें कोड करने होते हैं, तो हम जो है इन्वर्टेड कामा यूज़ करते हैं. इसे जो ना कोटेशन मार्क कहते हैं. और ये नरेशन में आता है, और नरेशन को जब पढ़ाऊँगा तो फिर इसके क्लियरिटी बताऊँगा कि इसको किस तरीके से यूज़ किया जाता है. बल्कि यहाँ पे ये नरेशन में और यहाँ पे हम जो है इन्वर्टेड कामा में उस असल स्पीकर के असल अल्फाज को रखना चाह रहे हैं. अब चांद क्या कह रहा है, जो है ना वो उल्लू क्या कह रहा है, चांद को पे चला रहा है और क्या कह रहा है, यू लोफर, कि चांद तुम लोफर हो. लोफर का मतलब होता है जो लूफिंग करता हो. लूफिंग ये उर्दू में भी हम यहाँ सिंधी में भी बोलते हैं लोफर. लोफर का बेसिक एक तो लोफर जूते भी होते हैं, लेकिन ये लोफर का मतलब है वो बंदा जो लूफिंग करता हो. लूफिंग का मतलब अंग्रेज़ी का वर्ड है जो मतलब इधर उधर जो ना आवारगी करता रहे, तो उसे जो ना कहते हैं कि यू लोफर. अब देखिए यहाँ पे ये लोफर को यूज़ कर रहा है कैसे, वही नॉमिनेटिव केस मैंने आपको कल बताया था ना, वो जो हम यूज़ करते हैं किसी को जब वोकेटिव केस होता है ना, किसी को मुखातिब करने के लिए, स्टूडेंट्स वर्क हार्ड. यहाँ पे यही चांद कर रहा है, उल्लू कर रहा है, चांद को कह रहा है लोफर, यू लोफर, व्हाई डू यू कीप लुकिंग एट मी, तुम अक्सर क्यों मुझे देखते रहते हो, एंड मूविंग अराउंड माई हाउस, और अक्सर मेरे घर का चक्कर क्यों लगाते रहते हो. अब वो उल्लू जो ना चांद को कह रहा है कि आप मुझे क्यों अक्सर इस तरह जो ना वो तकते रहते हो, वो जो अंदर ग्लिम्पसेस आ रही थी तकते रहते हो, और क्यों मेरे घर का चक्कर लगाते रहते हो. नाउ हु कुड डिसइल्यूजन आउल. अब इस बेचारे उल्लू को कौन समझाए दैट द मून नेवर फॉल्स इन लव विद एन आउल, कि चांद कभी भी उल्लू के साथ जो है ना वो प्यार में नहीं उलझते. बट दैट इज़ व्हाट इज illusion. So the question is that this was in a lighter sense, but the question is that we people are, most of the people, they just remain in a sense of illusion. Okay, and when we remain in this type of illusion, then we don't reach our destination. So most often it has been noticed, majority of the people, they have this sort of illusion. They think that somebody, so here you see that this is a kind of a illusion what an owl develops regarding the moon, that the moon has become just has fallen in love with it, so it's escaping. So my dear students and audience, illusion, we majority of the people in the society we are living, they are really living with certain so many illusions. Okay, and when you are illusion, you are living in the state of illusion, believe me, you lose the taste of your life. Okay, you miss very beautiful things in your life. Okay, so please come out of illusion, live a natural life, be what you are, live a simple life. मैंने पिछली क्लास में भी यही बताया था
कि इस मुगालते और जो अना है, ईगो जो होती है, ईगो और अना, इससे जब हम निकलते हैं तो हम जिस जगह पर आते हैं वो आजिज़ी कहलाती है, व्हाट वी कॉल ह्यूमैनिटी. एंड व्हेन यू कम टू दिस एज ऑफ ह्यूमैनिटी, that gives you real essence of your existence, and you start living a meaningful life. So life is all about that. We are here to kill the illusion. We are here to kill this illusion, to get rid of this illusion. And the story what I narrated you about the eagle, that is what the painful process. Okay, majority of the people, they want to live an ideal life, but they are not willing to go through the painful process of a change. You know, change doesn't come. There's no shortcut to change. There's no shortcut to success. Okay, success only comes once you go through this painful process. I don't know on what conditions Buddha said that sarom dukham dukham, zindagi mahz dukh hai. But I believe that after this pain there comes prosperity. There's always prosperity after pain. Every happiness follows a painful process. So innamal usri yusra, that's what is a life. After pain there's a pleasure, after pain definitely there's a pleasure. So be optimistic, live a meaningful life, and keep learning good things in your life. Don't stay in any illusion. Come out of that, live a meaningful life. Change will come, change is there, change is inevitable, and one day you would emerge as a successful individual, but only once you are committed to yourself. Only those people who are committed, who are sincere, who use their time positively, who know that what is the important thing in their life, they know the significance of the things, and they also know that how the world is moving and how they could be able to keep pace with this thing. Those people could emerge in this world and they can rule over the world. So it's all about you. Change is always with you. And with this, okay, I would end this 12th session, and hope you have enjoyed it. And we would meet day after tomorrow. And in the next class, actually, it is time to discuss adjective, because we have covered noun and pronoun. But in the next class, I'm not going to talk adjective. I'm going to talk on a sentence, because sentence is the root of where from these all things are developing. So I will give whole class to sentence next, and after that I will again resume this chain, adjective and verb and adverb. So thank you very much, and love you all. See you in the next class. Love this. Bye bye.